আচ্ছা দেখো, আজ আমরা পড়বো গ্রিনস থিওরেম। তো গ্রিনস থিওরেম জিনিসটা কি সেটাকে বলে নেই। যে তোমরা লাইন ইন্টিগ্রালও পড়েছো, সারফেস ইন্টিগ্রালও পড়েছো, তাই তো? লাইন ইন্টিগ্রাল মানে অ্যালং দ্য কার্ভ বের করতে হয়, সারফেস ইন্টিগ্রাল মানে অ্যালং ওভার এনি সারফেস বের করতে হয়। সেই লাইন ইন্টিগ্রালকে সারফেস ইন্টিগ্রালে রূপান্তরিত করে হলো এই গ্রিনস থিওরেম। ঠিক আছে, এটা হলো মেন কথা। এবার আমরা এখানে একবার স্টেটমেন্টটা পড়বো। গ্রিনস থিওরেম স্টেটমেন্টটা কি, যে ইফ আর ইজ দ্য ক্লোজড রিজিয়ন ইন দ্য এক্স ওয়াই প্লেন, ইফ আর ইজ দ্য ক্লোজড রিজিয়ন ইন দি এক্স ওয়াই প্লেন, তার মানে কি, এই যে এখানে দেখো যে নীলকালিতে ডট 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 দিয়ে দেওয়া আছে, সেটা একটা রিজিয়ন, সেটা কি আর রিজিয়ন, সেই রিজিয়নটার নাম হলো আর। ঠিক আছে, এক্স ওয়াই প্লেনে, এক্স ওয়াই, ঠিক আছে, হুইচ ইজ বাউন্ডেড বাই এ সিম্পল ক্লোজড কার্ভ সি। তার মানে এই যে রিজিয়নটা আছে আর রিজিয়নটা, সেটা কি করলাম, এই যে কালো রঙের যে বাউন্ডারিটা দেখছো এটাকে একটা সিম্পল ক্লোজড কার্ভ। সিম্পল ক্লোজড কার্ভ মানে তো তোমরা জানোই সেটা কি ছিল। ধরো তো সিম্পল ক্লোজড কার্ভ মানে কি, যে কার্ভটা নিজেকে অন্য কোথাও ইন্টারসেক্ট করে না, তাই তো? যেটা আমরা বলেছিলাম আমরা যে এটাও একটা কার্ভ, এটাও কিন্তু একটা ক্লোজড কার্ভ, কিন্তু এটা সিম্পল ক্লোজড কার্ভ না। কারণটা কি, যে এই কার্ভটা নিজেকে ইন্টারসেক্ট করেছে এখানে। যেমন তোমার সার্কেল, এটা নিজেকে কোথাও ইন্টারসেক্ট করেনি, কিন্তু এটা ক্লোজড কার্ভ। হ্যাঁ, তারপরে কি এলিপস, এটাও একটা ক্লোজ কার্ভ, যে নিজেকে কোথাও ইন্টারসেক্ট করেনি। ঠিক আছে, কিন্তু প্যারাবোলা যদি নেই y = 4x, এটা কিন্তু সিম্পল ক্লোজ কার্ভ না। কারণ কি, এটা কিন্তু বন্ধ না। ঠিক আছে, তাহলে কি সিম্পল ক্লোজ কার্ভ, যে নিজেকে কোথাও ইন্টারসেক্ট করবে না। তাহলে এমন একটা রিজিয়ন থাকবে আর, যেটা এই সি দিয়ে, এমন একটা সি দিয়ে আবদ্ধ থাকবে। অ্যান্ড ইফ এম এক্স ওয়াই অ্যান্ড এন ইজ এ ফাংশন অফ এক্স ওয়াই আর কন্টিনিউয়াস ফাংশনস হ্যাভিং কন্টিনিউয়াস পার্শিয়াল ডেরিভেটিভস ইন দি রিজিয়ন আর। তার মানে কি, এই এম আর এন এই দুটো কি এক্স আর ওয়াই এর একটা ফাংশন থাকবে, যে দুটো ফাংশন কি হবে, যাদের পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ এক্সিস্ট করবে। ঠিক আছে, এবং তারাও কন্টিনিউয়াস হবে কোথায়, এই রিজিয়নে আর এ। যদি তাই হয় তাহলে কি বলতে পারবো, যে ক্লোজড ইন্টিগ্রাল ওভার দি কার্ভ সি অফ এম ডিএক্স প্লাস এন ডিওয়াই মাস্ট বি সেম অ্যাজ ডবল ইন্টিগ্রাল ওভার দি রিজিয়ন আর অফ দিস উইথ রেসপেক্ট টু এক্স অ্যান্ড ওয়াই। ঠিক আছে, তার মানে আমরা জানি কি ডবল ইন্টিগ্রাল এটা হলো সারফেস ইন্টিগ্রাল, আর ক্লোজড ইন্টিগ্রাল ওভার সি এটা মানে কি, এটা একটা লাইন ইন্টিগ্রাল, তাই তো? এখানে ক্লোজ দেওয়া মানে কি, এটা হলো সিম্পল ক্লোজড কার্ভ, কার্ভটা যখন ক্লোজড হয় তখন এটা সি লেখা হয়। ঠিক আছে, তাহলে কি, এই যে হলো লাইন ইন্টিগ্রাল, এটা চেঞ্জ হয়ে গেল কিছু সারফেস ইন্টিগ্রালে, তাহলে এটাই বলা হয়েছে হলো গ্রিনস থিওরেম। তাহলে আবার বলে দিই কি, যে একটা রিজিয়ন যদি আর থাকে, সেটা যদি একটা সি একটা ক্লোজড কার্ভ দিয়ে যদি আবদ্ধ হয়, যে আবদ্ধ হয়, এবং এম আর এন এই দুটো ফাংশন যদি এক্স আর ওয়াই এর ফাংশন হয়, তারা কন্টিনিউয়াস হবে, এবং যাদের পার্শিয়াল ডেরিভেটিভও কন্টিনিউয়াস হবে এই রিজিয়ন আর এ, তাহলে আমরা এই রিলেশনটা করতে পারবো, লাইন ইন্টিগ্রাল ইকুয়াল টু সারফেস ইন্টিগ্রাল। কিন্তু এখানে একটা কন্ডিশন আছে কি, যে সি যে কার্ভটা সেটাকে ট্রাভার্সড ইন দি পজিটিভ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশন। তার মানে কি, এই সি এর যে ডাইরেকশনটা হবে সেটা কি কাউন্টার ক্লকওয়াইজ, মানে ঘড়ি কাঁটা যেদিকে ঘোরে তার বিপরীত দিকে। ঘড়ি কাঁটা কোন দিকে, এই ঘড়ি কাঁটা কোন দিকে ঘোরে, এইভাবে ঘোরে, তার বিপরীত মানে কি এই দিক, তাহলে সেটা এই দিকে থাকবে। ঠিক আছে, সেটাই দেওয়া আছে। তাহলে দেখো আমরা এখন এটার কতগুলো এজি হচ্ছে একটু ধরো, এবার আমরা এর কতগুলো অ্যাপ্লিকেশন, এটার প্রুফটা লাগে না। ঠিক আছে, এটা তোমরা বলো, তোমরা নেটও পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, এটার প্রুফ। এখন দেখি এটার কতগুলো প্রবলেমস রিলেটেড। যেমন এই অঙ্কটা দেখো, কি বলা আছে, যে ভেরিফাই গ্রিনস থিওরেম ইন আ প্লেন। দেখো এটা যেমন এক্স ওয়াই প্লেনের ওপর হয়, সেই জন্য এটাকে আমরা অনেক সময় অনেক বইতে এটাও করে, যে গ্রিনস থিওরেম ইন আ প্লেন এভাবেও বলে। ঠিক আছে, থিওরেম ইন আ প্লেন ফর closed integral over the curve C of x square plus xy dx plus x dy, where C is the curve enclosing the region
बाउंडेड बाय y इक्वल टू एक्स स्कोয়ার অ্যান্ড y ইকুয়াল টু এক্স। ঠিক আছে, এটা আমরা এখন সলিউশন দেখব। তাহলে এখানে কি দেখো কী আছে, যে গ্রিনস থিওরেমকে ভেরিফাই করতে বলেছে। গ্রিনস থিওরেমকে ভেরিফাই যখন করতে বলবে তখন মনে রাখবে কী করতে হবে, আমাকে লাইন ইন্টিগ্রাল বের করতে হবে, মানে বাম পক্ষে যেটা আছে লাইন ইন্টিগ্রালটা বের করতে হবে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমাকে এই সারফেস ইন্টিগ্রাল বের করতে হবে। তারপর আমাকে দেখাতে হবে যে এই লাইন ইন্টিগ্রালের ভ্যালু আর এই সারফেস ইন্টিগ্রালের ভ্যালু দুটোই সমান। যখন সমান হয়ে যাবে তখন গ্রিনস থিওরেম ভেরিফাই হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো গ্রিনস থিওরেম থেকে 3 টাইপের অঙ্ক আছে, মেনলি 2 টাইপের অঙ্ক আছে। কী যে একটাকে বলে তোমাকে গ্রিনস থিওরেম ভেরিফাই করতে। ভেরিফাই করা মানে কি, এটা যে তোমাকে লাইন ইন্টিগ্রাল বের করতে হবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সারফেস ইন্টিগ্রাল বের করতে হবে, দেখাতে হবে দুটো ভ্যালু সমান, তাহলে হয়ে যাবে তোমার ভেরিফাই হয়ে যাবে। অনেক সময় বলে ইউজ গ্রিন থিওরেম টু ইভ্যালুয়েট দি ইন্টিগ্রাল দিস, তার মানে কি তোমাকে গ্রিন থিওরেমকে ব্যবহার করে তোমাকে রিকোয়ার্ড ইন্টিগ্রালটাকে বের করতে হবে। সেক্ষেত্রে আমরা কী করবো, তখন আমরা লাইন ইন্টিগ্রালটা বের করবো না, কারণ আমরা কী জানি যে লাইন ইন্টিগ্রালটাই হলো সারফেস ইন্টিগ্রালের সমান। সেক্ষেত্রে আমরা এই সারফেস ইন্টিগ্রালটা বের করবো, যেটা অনেক সহজ হবে। ঠিক আছে, এখানে দেখো কী বলা আছে, এম ডিএক্স প্লাস এন ডিওয়াই। এখানে ভালো করে দেখো এখানে কী আছে, যে ডেল এন ডেল এক্স মাইনাস ডেল এম ডেল ওয়াই, মানে কি এই ডিওয়াইয়ের শক যেটা থাকবে ওটাকে এক্সের সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে, আর এখানে ডিএক্সের শক যেটা থাকবে এম সেটাকে ওয়াই রেসপেক্টে পার্শিয়ালি ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে, করে আলটিমেট যে ফাংশনটা আসলো সেটাকে এক্স আর ওয়াইয়ের সাপেক্ষে ডবল ইন্টিগ্রেশন করতে হবে। ঠিক আছে, তারপর আমি এটাকে ভেরিফাই করবো। তো এখানে দেখো কার্ভটা কী দেওয়া আছে, সি ইজ দি কার্ভ এনক্লোজিং দি রিজিয়ান বাউন্ডেড বাই ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার অ্যান্ড ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স। তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার মানে এখানে আমি রাফে বলে নিই যে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার, আর এটা কি বলা আছে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স। আগে আমি এটাকে ড্র করি, যে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার মানে কি, ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ারকে আমরা এরকম লিখতে পারবো যে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়াই, দ্যাট ইজ এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু 4 × 1/4 × ওয়াই, দ্যাট ইজ এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু 4ay। তার মানে এটা কিসের ইকুয়েশন আমরা জানি, এটা হলো একটা প্যারাবোলার ইকুয়েশন। এইদিকে সিমেন্ট এইদিকে থাকবে এরকম। ঠিক আছে, মানে অ্যাক্সিসটা এটা থাকবে, এটা থাকবে ভার্টেক্স। তাহলে এখানে কী হবে, যদি আমরা এখন ড্র করি এটাকে, ঠিক আছে, এটা হবে, এটা কোন কার্ভটা হবে, ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার। ঠিক আছে, ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স, এটা মানে আমরা কোন জানি, এটা হলো মূল বিন্দুগামী সরলরেখা। তার মানে এইভাবে লাইনটা যাবে, যেটা মূল বিন্দু অরিজিন দিয়ে যাবে। তার মানে এখান দিয়ে যাবে, লাইনটা যাচ্ছে এইভাবে, এভাবে চলে গেল লাইনটা। এক্ষেত্রে এই লাইনটা কোন লাইন হবে, এটা হলো ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স লাইন। তাহলে এখানে দেখো রিজিয়ানটা কোনটা হবে, মানে আর রিজিয়ান যেটা সেটা কোনটা আমরা জানি, এটা কোন, তাহলে কী হচ্ছে বাউন্ডেড বাই দিস টু। তাহলে এই কার্ভ এবং এই কার্ভ এই দুটোর কমন রিজিয়ান কোনটা, এই মাঝখানের টু। তাহলে এটাই হয়ে যাবে তোমার এই যে ডট ডট দিয়ে যে স্পেসটা, এটাই কী হয়ে যাবে আর রিজিয়ান, এটা হয়ে যাবে আর রিজিয়ান। ঠিক আছে, আর রিজিয়ান। এবং এখানে তোমার যে ডাইরেকশানটা হবে সেটা কী হবে, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশান। এখানে বলা আছে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, ট্রাভার্স অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশান, এইদিকে ঘুরবে। যেমন এখানে তো এইদিকে, তারপরে এইদিকে, তাই তো। তাহলে এইদিকেও কী হবে, আগে এইদিকে থাকবে ডাইরেকশান, তারপরে এখানে এই পয়েন্টে আসার পরে তারপরে এইদিকে, কারণ রিজিয়ানটা তো এটা। আর এই পুরোটা কি ক্লোজড কার্ভ সি, এই বাইরে যে আবদ্ধ যা আর রিজিয়ানটা যে আটকানো আছে এটা দিয়ে, এই যে রিজিয়ানটা যা আছে এই রিজিয়ানটাকে নাম হলো সি। ঠিক আছে, আর ভেতরের জায়গাটা হলো আর রিজিয়ানটা সি কার্ভ দিয়ে আটকানো আছে। এবার আমার কী দেখতে হবে, দুটো কার্ভ তো ভালো করে দেখতে পারো যে দুটো পয়েন্টে মিট করেছে, একটা এই পয়েন্ট একটা এই পয়েন্ট। এই দুটো পয়েন্টে কোঅর্ডিনেট পাবো কী করে আমি, তাহলে দুটো কার্ভের ইকুয়েশনকে সলভ করে দিলেই আমরা এই দুটো পয়েন্টে কোঅর্ডিনেট পেয়ে যাব। তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার আর ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স। ঠিক আছে, আচ্ছা বাংলায় বলে ফেলছি ভুল করে, हिंदी बोलছি। ठीक है, देखो तो देखो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स, दो कर्व है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा टू गेट दी कॉमन पॉइंट्स फॉर दिस टू कर्व्स। तब देखो ये दोनों को y इक्वल टू एक्स यहाँ पे बिठाओ, देन क्या आएगा, y इक्वल टू एक्स यहाँ पे बिठाओ, देन क्या आएगा, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट इम्प्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाई एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पे दो वैल्यू आ रहा है, एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है, एक्स इक्वल टू 1 आ रहा है। तो व्हेन एक्स इक्वल टू 0, व्हेन एक्स इक्वल टू 0, तब यहाँ पे बिठाने से y इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू 0 आएगा। एंड व्हेन एक्स इक्वल टू 1, तब यहाँ पे बिठाने से y इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। तो मतलब दो पॉइंट है, एक तो आ रहा है 0 0 और एक आ रहा है 1 1। तो मतलब ये दो कर्व आपस में दो ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो है 1 1 पॉइंट और दूसरा है ऑरिजिन दैट इज 0 0 पॉइंट।
ठीक है। तो इसको मैंने नाम दिया O, इसको मैंने नाम दे दिया सपोज कि P, ठीक है, नाम दे दिया P। जब एरो दिखाई दे रहा है ना, मैं इसके यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लूँगा बाद में, ठीक है। मैं फिर से भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ कि रीजन ऐसा है, ठीक है, और जो कर्व है वो ऐसा है। तो मतलब यहाँ पे फिगर तुम यहाँ से भी ले सकते हो, दैट इज़ P इज़ 1 1 एंड दिस इज़ O 0 0, ठीक है। और ये जो बीच का जो रीजन है, ये जो बीच का जो रीजन है, दिस इज़ द R रीजन, ठीक है, एंड विच इज़ बाउंडेड बाय दिस कर्व इट इज़ नेम्ड C, ठीक है। और ये जो है ये कौन सा कर्व है, y = x² वाला कर्व है, और दिस इज द स्ट्रेट लाइन y = x, ठीक है। और डायरेक्शन किस तरफ है, O से लेकर P तक आएगा इस तरफ, एंड P से लेकर O तक इस तरफ, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी देखो क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज द कर्व C। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे दैट इज ऐसे लिखो, द कर्व्स, राइट देने से अच्छा होता है क्या, देखते हैं। द कर्व्स y = x² and y = x meets at O 0 0 and P 1 1। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये C क्या है, C इज द बाउंड्री ऑफ दिस रीजन, ठीक है। और एक बात है कि ये जो पूरा कर्व है C, मतलब फिगर कहा गया यहाँ पे, जो पूरा कर्व है C ये दोनों हिस्सों में बांट गया है। एक तो है ये वाला, दैट इज़ OP, मतलब ये वाला आर्क है, इसको बीच पे कोई नाम दे देते इसका, सपोज कि OA, और इसका नाम है, देन ये जो आर्क है OAP, और दूसरा क्या है PBC, दूसरा इसका नाम दे देगा। देन OAP जो है उसको मैंने अगर सपोज कि C1 बोल दिया, एंड ये जो PBC है इसको मैंने C2 बोल दिया। देन ये OAP प्लस ये PBC दोनों को मिलाने से क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। C इज दी C1 + C2, याद रखना, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी देखो हेयर C इज द बाउंड्री ऑफ द रीजन are described in anti-clockwise manner, ठीक है, as shown in the figure, ठीक है। एंड यहाँ पे जो कर्व है C दोनों हिस्सों में बांट गया है, दैट इज OAP, इसको मैंने नाम दिया सपोज कि A, इसका नाम दिया देन OAP एंड PBC। यहाँ पे थोड़ा कर्व छोटा हो गया है, ये ऐसे देखने से तुमको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। ये वाला कर्व देख लेना, देन क्या होगा, यहाँ पे लिखो, अभी ये वाला कर्व देते हैं, where the curve C consists of टू पार्ट्स, दो हिस्सों में बांट गया है, दैट इज C1 दैट इज OAP एंड C2 दैट इज PBO, ठीक है। देखो OAP ये वाला C1 एंड PBC ये वाला C2। OAP मतलब ये वाला पैराबोला एंड PBC मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा, अभी देखो लाइन इंटीग्रल पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि वेरिफिकेशन मांगा है यहाँ पे, तो ये वाला लाइन इंटीग्रल पहले निकालना पड़ेगा। तो देखो नाउ क्लोज इंटीग्रल ओवर C, पहले ये लिख लेता हूँ, नाउ क्लोज इंटीग्रल ओवर C, ये पे क्या है, दैट इज x² + xy dx, x² + xy dx प्लस x dy। ये जो है मतलब f.dr करके ये बिठाया है, ठीक है, डायरेक्ट। तो देखो ये तो क्लोज इंटीग्रल है ना, तो इसको तोड़ने से मतलब ये वाला जो पूरा कर्व है, ये वाला जो पूरा कर्व है, ये पूरा क्लोज्ड कर्व है, बट इसका जो दो पार्ट है, दैट इज एक हो गया OAP दैट इज C1, तो ये तो खुला हुआ पार्ट है, और जो दूसरा पार्ट है PBC, ये भी खुला हुआ पार्ट है, दोनों को मिलाने से ये क्लोज्ड कर्व आ रहा है। तो खुलने से क्या आएगा, दैट इज क्लोज, दैट इज
ओनली इंटीग्रल ओवर सी, इंटीग्रल आएगा दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ये आएगा। और एक क्या आएगा, इंटीग्रेशन ओवर सी वन नहीं तो सी वन आएगा यहाँ पे, एंड सी टू यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज सेम इंटीग्रल, दैट इज इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ठीक है, देन ये दोनों को मिलाने से ये वाला इंटीग्रल आ जाएगा। तो मुझे ये दोनों इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। नाउ ये C1 निकलने के लिए मुझे अलोंग द कर्व C1 क्या हो रहा है वो देखना पड़ेगा। ये तो OAP क्या है, OAP इज़ द C1 एंड PBC इज C2, याद रखना ये दोनों चीज़। ठीक है, देन अलोंग OAP क्या हो रहा है, देखो कि अलोंग OAP क्या हो रहा है, दैट इज़ अलोंग C1, दैट इज़ अलोंग OAP क्या हो रहा है इसमें, नाउ अलोंग C1 दैट इज अलोंग OAP, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, इस वाला जो कर्व है C1, इसमें से y इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर है। देन मुझे यहाँ पे x कहाँ से कहाँ में वेरी कर रहा है, x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 1 तक वेरी कर, x कोऑर्डिनेट देखो सिर्फ, तो मुझे सब कुछ x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो y इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब dy कितना आएगा 2x dx आ गया, क्योंकि दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करो, देन dy dx आएगा 2x, दैट इज dy इक्वल टू 2x dx आ गया। एंड x वेरीज फ्रॉम, एंड x कहाँ से कहाँ में वेरी कर रहा है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, दैट इज x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। देयरफॉर इंटीग्रल अलोंग C1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ये कितना आएगा, इंटीग्रल x इक्वल टू 0 टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू यहाँ पे y इक्वल टू कितना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पे, डी एक्स तो है ही प्लस एक्स, देन डी वाई इक्वल टू कितना है 2x dx, मतलब जहाँ पे x है उसमें हाथ में मत लगाना, जो y है उसको सिर्फ x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देन इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज एक्स इक्वल टू 0 टू 1 देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और यहाँ पे आ रहा है 2x स्क्वायर बाहर dx। ठीक है, दैट इज एक्स इक्वल टू 0 टू 1, यहाँ पे आ रहा है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर dx। तो इसको इंटीग्रेट करने से कितना आएगा, x टू दी पावर 4/4 प्लस 3 इंटू एक्स क्यूब बाई 3, दैट इज 0 टू 1। तो बिठाओ अभी 1/4, या तो 3 कैंसिल होकर 1 ही आएगा, तो -0, दैट इज यहाँ पे कितना आ रहा है 5/4। ठीक है, अभी मुझे क्या देखना पड़ेगा, अलोंग PBC ये वाला कर्व, एंड अगेन अलोंग PBC इसमें क्या हो रहा है देखो, दैट इज अलोंग द कर्व C2 क्या हो रहा है, y इक्वल टू 1 से लेकर y इक्वल टू 0 में चेंज हो रहा है, सिर्फ y कोऑर्डिनेट देखो, y इक्वल टू 1 से लेकर y इक्वल टू 0 में चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये जो कर्व है कौन सा कर्व है, y इक्वल टू x, ये पे लिखो अलोंग द दिस, ये पे क्या आ रहा है कि y इक्वल टू x, दैट इज दोनों तरफ अगर मैंने विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, देन डी वाई डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा, दैट इज डी वाई इक्वल टू डी एक्स आएगा। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो कि दैट इज डी एक्स इक्वल टू डी वाई आ गया, एंड y वेरीज फ्रॉम y इक्वल टू, ये भाई देखो कहाँ से कमी वेरी कर रहा है, y इक्वल टू कौन है देखो 1, यहाँ पे 0, दैट इज y इक्वल टू 1 टू y इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिगर ऐसे साइड में रख देते हैं तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तुम देख सकते हो अभी, देयरफॉर इंटीग्रल अलोंग C2 कर्व क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, तब क्या होगा इंटीग्रल y इक्वल टू 1 टू 0। ठीक है, अभी जो जहाँ पे x है तब को y में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबको, तब एक्स स्क्वायर है, देन x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू तुम y है, देन y स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज़ y स्क्वायर प्लस x इक्वल टू y, बेटा y इंटू वाई, दैट इज़ y स्क्वायर हो गया। ठीक है, देन आएगा dx, ठीक है, प्लस x है, फिर से x का जगह में क्या बिठाना है y, एंड अच्छा यहाँ पे एक चीज़ गलत किया मैंने, यहाँ पे dx नहीं होगा क्योंकि dx इक्वल क्या आ गया dy आ गया, फिर dy,
एंड एक्स इक्वल टू वाई बिठा दिया, अब ये डी वाई एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करो, दैट इज इक्वल टू वाई इंटू जीरो, अभी कितना आएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2y² प्लस वाई, दैट इज 2y² प्लस वाई डी वाई। इसको सॉल्व करने से कितना आएगा 2/3y³ प्लस इंटीग्रल ऑफ वाई दैट इज y² बाई 2 y इंटू जीरो, तो जीरो भी रहने से तो जीरो ही आएगा दोनों का, -1 भी रहने से 2/3 प्लस 1/2, दैट इज आ रहा है तुम्हारा -6 आ रहा है, दैट इज कर देता हूँ 4 + 3 दैट इज इक्वल टू -7/6। तो मेरे ये दोनों इंटीग्रल निकल के आ गया, ये दोनों को मिलाने से क्या आ जाएगा, ये वाला इंटीग्रल आ जाएगा। ठीक है, तब ये दोनों को मिला देते हैं, इसे लिखते हैं अभी कि देयरफॉर वन इम्प्लाइज क्लोज इंटीग्रल ओवर सी x² प्लस xy dx प्लस x dy इक्वल टू ये वाला जो दैट इज इंटीग्रल ओवर C1 प्लस इंटीग्रल ओवर C2, ये दोनों तुम ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो C1 ओवर C1 आया है ये कितना आया देखो 5/4, ये पे आएगा 5/4, और जो इंटीग्रल ओवर C2 आया है वो कितना आया है -7/6, ये आ जाएगा -7/6। ये दोनों को सॉल्व करने से कितना आएगा 5/4 -7/6, दैट इज 4 and 6 2 4 12 15 1/12। सो दिस इज द लाइन इंटीग्रल मैंने निकाल लिया। अभी वेरिफिकेशन मांगा है, तो वेरिफिकेशन मांगने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो सेकंड पार्ट ये भी निकालना पड़ेगा, सरफेस इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। ठीक है, नाउ हमको क्या निकालना पड़ेगा, फिर इसका जो वैल्यू आएगा ये भी मुझे दिखाना पड़ेगा, वो भी 1/12 भी आ रहा है, तब जाके वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, लेकिन नाउ डबल इंटीग्रल ओवर आर del n del x माइनस del m del y dx dy। ठीक है, तभी यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे n क्या है m क्या है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि dx का जो कोफिशिएंट है तो उसको हम लोग m बोलते हैं, dy का जो कोफिशिएंट है तो उसको हम n बोलते हैं। तो यहाँ पे जो गिवन है तुम्हारे पास इंटीग्रल, यहाँ पे dx का कोफिशिएंट क्या गिवन है, तो मतलब ये हो जाएगा m और ये dy का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा n। तो ये जो x है x हो गया n, देन इसको मुझे विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या होगा बोलो, देखो डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन r del n del x दैट इज del x ऑफ ax आएगा ना, माइनस del y ऑफ m। तो m क्या होता है, m इज द कोफिशिएंट ऑफ dx, यहाँ पे dx का कोफिशिएंट कितना है x² प्लस xy, तभी कितना आएगा x² प्लस xy, तो हर ब्रैकेट दे देते हैं, पहले निकल बाहर आएगा dx dy। ठीक है, तभी पहले इसको देखते हैं क्या होता है, del x मतलब 1 और del y ऑफ x का मतलब 0 और del y ऑफ xy मतलब, तो x तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, del y ऑफ y मतलब 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 0 प्लस x dx dy। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया डबल इंटीग्रल ओवर r 1 माइनस x dx dy। अभी आएगा इंटीग्रेशन का रेंज क्या होगा, तो देखो रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पार्ट ठीक से देखना। अच्छा वो तो मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ किया था ना, जब एक चीज़ देखो यहाँ पे जो हम लोग इंटीग्रल आया डबल इंटीग्रल ओवर r 1 माइनस x dx dy, तो मैंने पहले भी बोला था पहले जो x का यहाँ पे जो रहेगा पहले इंटीग्रेशन में वो कांस्टेंट रहेगा, दूसरे में क्या आएगा वेरिएबल आएगा ना। तो ये निकालने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है देखो 0, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 1, तो x इक्वल टू आएगा 0 से लेकर 1 तक, और जो y आएगा मैंने बोला तो वेरिएबल आएगा लोएस्ट वैल्यू टू हाईएस्ट वैल्यू। तो कार्व कौन सा है पहले वो देखो, कार्व है ये वाला कार्व है, कार्व कौन सा है ये वाला, ये दोनों को मिलाकर तो क्लोज्ड कर्व आया है ना। तो इसका जो लोएस्ट वैल्यू आएगा वो किसके ऊपर आएगा, इस रीजन पे आएगा लोएस्ट वैल्यू। तो इसमें y इक्वल टू कितना है, तो इसमें देखो y इक्वल टू कितना है, इसमें y इक्वल टू x², मतलब ये वाला जो कर्व है ये कितना है y इक्वल टू x²। तो दिस इज द लोएस्ट वैल्यू, देन इसका लोएस्ट वैल्यू कितना आएगा y इक्वल टू x² में आएगा, और इसका जो हाईएस्ट वैल्यू आएगा किसके ऊपर आएगा, इसका हाईएस्ट वैल्यू एरो मैंने खींचा इस तरफ, स्ट्रिप मैंने खींचा, तो हाईएस्ट वैल्यू किसके ऊपर आ रहा है, इस लाइन के ऊपर आ रहा है, तो इस लाइन के ऊपर y इक्वल टू कितना है x। तो दूसरा जो इंटीग्रल है उसमें y के वैल्यू रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगा, यहाँ पे y इक्वल टू x² है और यहाँ पे y इक्वल टू x है, मतलब y इक्वल टू x² से लेकर x तक, और x का वैल्यू कहाँ से कहाँ में आएगा 0 से लेकर 1 तक। तो यहाँ पे क्या होगा बोलो अभी, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटीग्रल आएगा x इक्वल टू
0 से लेकर 1 तक, और दूसरा इंटीग्रल हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से लेकर x तक, ठीक है। देन 1 माइनस एक्स डी एक्स डी वाई। अब ये सॉल्व करो, करने से क्या होगा, देखो 1 माइनस एक्स, इसमें तो कोई x का टर्म इंक्लूडेड नहीं है, तो 1 माइनस एक्स को मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ, पहले 1 माइनस एक्स के साथ लेके आओ। देन पहले क्या होगा, अभी वो इंटीग्रल ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स, अभी क्या आएगा, पहले y का होगा ना, देन डी वाई डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x इक्वल टू 0 टू 1 माइनस एक्स, इंटीग्रल ऑफ डी वाई मतलब क्या होता है, y होता है, दैट इज एक्स स्क्वायर से लेकर x तक डी एक्स। देन क्या होगा, इंटीग्रल x इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक 1 माइनस एक्स, वाई अपर लिमिट मिटाने से आएगा x, लोअर लिमिट मिटाने से आएगा एक्स स्क्वायर, बाहर आएगा डी एक्स, ठीक है। दैट इम्प्लाई दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू 0 टू 1, अब 1 से मल्टीप्लाई करने से 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू एक्स दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज प्लस एक्स क्यूब डी एक्स। अभी विथ रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करो इसको, देन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 2। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक लाइन नहीं लिखा, तो यहाँ पे माइनस एक्स का माइनस एक्स का माइनस 2x स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे मिलाने से क्या आएगा, माइनस 2x क्यूब बाई 3, और इसका आएगा प्लस x टू द पावर 4 बाई 4 दैट इज 0 टू 1, तो 1 से लेकर क्या आएगा, 1 बाई 2 माइनस 2 बाई 3 प्लस 1 बाई 4, और 0 के लिए ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 दैट इज माइनस 0। तो ये तीनों को मिलाने से क्या आ जाएगा, देखो एलसीएम कितना आ रहा है, 2 3 12 आ रहा है। देन आएगा 6 माइनस 3 4 8 प्लस 3 दैट इज आ रहा है 9 माइनस 8 बाई 12 दैट इज इक्वल टू 1 बाई 12। तो देखो यहाँ पर भी 1 बाई 12 वैल्यू आ गया, यहाँ पर भी 1 बाई 12 वैल्यू आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि ये जो लाइन इंटीग्रल है और ये जो सरफेस इंटीग्रल है दोनों सेम है, तो मतलब ग्रीन थ्योरम वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, that is which is equal to the given line integral, and hence verified। ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है, समझ में आया। तो मैंने क्या किया, जो कर्व है वेरिफिकेशन करने के लिए बोला है, तो मुझे ये लाइन इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, सरफेस इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। लाइन इंटीग्रल के लिए पहले मैंने कर्व को ड्रॉ कर लिया, अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मुझे देखना पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या है कि दोनों कर्व आपस में पी एंड ओ पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है, दैट इज दोनों कर्व को सॉल्व करने से, आपस में सॉल्व करने से इंटरसेक्शन का पॉइंट आ जाएगा। आने के बाद मैंने पूरा कर्व को क्या किया, दो हिस्सों में बांट दिया। तो यहाँ पे देखो, एक तो हो गया C1, एक हो गया C2, इट इज़ OAP एंड PBC। ये पूरा को मिलाने से क्लोज्ड कर्व C आ रहा है, ठीक है। इट इज C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, जहाँ पे OAP C1 एंड PBC C2। देन मैंने क्या किया, ये जो लाइन इंटीग्रल है पहले वो निकाला, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल निकाला, यहाँ पे देखो। देन C1 पहले आएगा OAP, देन आएगा PBC। अलॉन्ग OAP क्या हो रहा है, अलॉन्ग OAP क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो कर्व है, कौन सा कर्व, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। देन यहाँ पे x का वेरिएशन क्या हो रहा है, 0 से लेकर 1 तक, सिर्फ x का कोऑर्डिनेट देखो 0, और ये पे x कोऑर्डिनेट कितना 1, एंड y इक्वल टू कितना यहाँ पे एक्स स्क्वायर। देन y इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर होगा, देन डी वाई डी एक्स इक्वल टू कितना होगा 2x, दैट इज डी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x dx। तो मैंने वहाँ पे यह लिखा है, दैट इज डी वाई इज इक्वल टू 2x dx एंड 0 से लेकर 1 तक। एंड उल्टा लेकर जब यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा तब y का वेरिएशन देखना पड़ेगा। देन y का वेरिएशन कहाँ से लेकर तक हुआ, यहाँ पे y इक्वल टू 1 है, यहाँ पे y इक्वल टू 0 है, दैट इज y इक्वल टू 1 to 0। देन मुझको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि तुम y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट करोगे तो सब y का ही वेरिएबल रहना चाहिए, तो जहाँ पे x आएगा उसको भी मुझे y में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये जो कर्व है इसमें y इक्वल टू कितना है x है, इसका मतलब है x इक्वल टू y, दैट इज dx इक्वल टू dy। इसके लिए यहाँ पे क्या हो गया, dx इक्वल टू dy। करने के बाद जितना भी x था मैंने उसको y में कन्वर्ट कर लिया, एंड dx को dy में कन्वर्ट कर लिया। करने के बाद वैल्यू निकला, देन ये C1 का वैल्यू एंड C2 का वैल्यू दोनों को मिलाने से मेरा कितना आ गया, देखो ये दोनों को मिलाने से मेरा कितना आ गया अभी वैल्यू 1/12। फिर मैंने क्या किया, सरफेस इंटीग्रल निकाला। निकालने के लिए जब इंटीग्रल ये था तो समझ में आया ही होगा। तो ये जो इंटीग्रल का जो वैल्यू है रेंज, वो मुझे कहाँ से लेना पड़ेगा, देखो कि
पहला इंटीग्रल का वैल्यू लेना पड़ेगा कांस्टेंट, दूसरे का लेना पड़ेगा वेरिएबल। तो ये जो कर्व है, कर्व कहा गया, ये जो कर्व है इसमें x इक्वल 0 एंड x इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू आएगा 0 से लेकर 1 तक। एंड y के लिए क्या होना पड़ेगा कि लोएस्ट वैल्यू कहाँ में लाई कर रहा है, पहले वो देखो कर्व कौन सा है, ये वाला कर्व है, तो इस कर्व का लोएस्ट वैल्यू तो इसके ऊपर ही लाई करेगा और अपर वैल्यू इसके ऊपर लाई करेगा। देन लोएस्ट वैल्यू इसके ऊपर आ रहा है, तो इसके ऊपर y इक्वल टू कितना है, देखो x², और ये जो है अपर वैल्यू, अगर मैंने ऐसा लाइन खींचा यहाँ पे ऐसे, देन अपर वैल्यू इसके ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर y कितना है x, देन x² टू x, वही मैंने ले लिया, फिर मैंने इंटीग्रेट कर लिया यहाँ पे करके देखा कि वैल्यू सेम टू सेम 1/12 आ रहा है, तो मैंने विच इज़ इक्वल टू द सो ऑब्टेन्ड लाइन इंटीग्रल, हेंस वेरीफाइड ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, अभी दूसरा और एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम, आई यूज़ ग्रीन्स थ्योरम टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग लाइन इंटीग्रल। ठीक है, जब ग्रीन्स थ्योरम को अप्लाई करके निकालने के लिए बोलेगा तब हम लोग क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन दैट केस हम लोग जानते हैं कि ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट ये लाइन इंटीग्रल ही ये सरफेस इंटीग्रल का बराबर होता है। ठीक है, सेम होता है, तो हम लोग तब ये सिर्फ ये निकालेंगे, हम लोग ये निकालेंगे क्योंकि ये थोड़ा इजी होता है, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएट करने से क्या हो जाएगा, वेरिएबल कमती हो जाएगा। ठीक है, देन सिर्फ वेरिएबल का रेंज ही मीन करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग दूसरे वीडियो में हम लोग वो भी देखेंगे, आज इतना ही। तो तुम ऐसे वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, रुको, ये ले लो, देन इसके बाद आएगा, देखो ये वाला पेज हो गया, उसके बाद आएगा ये वाला पेज। ठीक है, ये पर ही ख़त्म। और फिगर के लिए ये वाला फिगर ये ड्रॉ करना, ये वाला। ठीक है, ले लो अच्छे से, चलो खत्म।